ہیں براہ راست اس وقت وزیر پنجاب اطلاعات فردوس اشرقوان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کی مشکور بھی ہوں اور شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ پھر اس ذمہ داری کا اہل سمجھا، اور میڈیا کی اس حوالے سے شکر گزار ہوں کہ ہر لمحہ جہاں کہیں مشکلات آئیں آپ نے حق کا ساتھ دیا اور سچ کو پروموٹ کرنے میں جو آپ کا رول رہا، جس طرح سچ کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، میں آپ سب کی بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ چونکہ پچھلے کچھ دنوں سے جب سے یہ میری نامزدگی کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو آپ کو اپوزیشن کی چیخیں اور آو بکا سنائی دے رہی ہے۔ ابھی میں آج باضابطہ پریس کانفرنس کسی بھی چینل پہ میری فرسٹ انٹریکشن ہوگی میڈیا میں واپسی کے حوالے سے، لیکن نوٹیفیکیشن اس طرح سے کہہ لیں کوئی بھاری بھرکم توپ بن کے اپوزیشن پہ گرا ہے کہ ہر شخص جس کی گھر والے بھی، اس کی اپنی ماں بھی، جس کی گھر والے بھی، اس کی اپنی ماں بھی اس تعارف سے واقف نہیں ہے، وہ بھی بیٹھ کے تنقید کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر فردوس کا آنا اپوزیشن پہ جو زلزلہ طاری ہوا ہے، اس زلزلے کی جو ریپرکشنز ہیں وہ آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن میں ان سب کو صرف ایک ہی بات کہنے آئی ہوں کہ میڈیا، آپ لوگ اور اس صوبے کے عوام ہماری جو سیاسی اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، جو نوک جھونک اور ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ آزمائی ہے، اس سے اکتا چکے ہیں، اور عوام یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ایز اے پولیٹیکل ورکر، پولیٹیشنز، وزراء، سیاسی جماعتیں، حکومتیں، ہم ان کے لیے سوچیں اور ان کے حقوق کے لیے لڑیں، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑیں۔ تو میں اپنی اپوزیشن کو برنال آفر کرتے ہوئے ان کے زخموں پہ مرچیں چھڑکنے نہیں آئی، زخم جو ہے جو ان کو میرے آنے سے لگے ہیں اس پہ مرہم رکھنے آئی ہوں، اور ان کو یہ کہنے آئی ہوں کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے۔ آپ اس ملک سے ہیں، اس صوبے سے ہیں، اور پاکستان کے عوام کی آپ سے بھی توقعات ہیں، ہمارے سے بھی توقعات ہیں، اور ہمیں مل کے اس وقت جن مشکلات سے یہ ملک گزر رہا ہے، ہمارے اندرونی اور بیرونی جو پاکستان کے دشمن اور مخالفین ہیں، ہم نے ان کے ایجنڈے کو ناکام کرنا ہے۔ ہماری پنجہ آزمائی چلتی رہے گی، لیکن اس وقت انٹرنیشنل فرنٹ پہ، ریجنل فرنٹ پہ جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں ان کی آپ اعلی کار نہ بنے، اور جاتی عمرہ کا جو بیانیہ ہے، جو ہندوستان کے اندر جاتی عمرہ ہو یا پاکستان کے اندر جاتی عمرہ ہو، وہ بیانیہ جو ہے اس وقت پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو بے توقیر کرنے کے لیے، انصاف اور انصاف پہ عمل درآمد کرنے والے جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں نیشنل، ان کو کنٹراورشل بنانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں،
पाकिस्तान का हर मुहिब वतन पाकिस्तान के साथ शनाख्त का रिश्ता रखने वाला हर पाकिस्तानी सिपाही जो है, हम 22 करोड़ अवाम जो है वो इस मुल्क के सिपाही हैं। वो आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम सब हैं। तो हमने मिल के सीसा पिलाई दीवार बन के पाकिस्तान के मुखालफिन का मुकाबला करना है, उनके हाथों इस्तेमाल नहीं होना। और पंजाब चूँकि एक बड़ा भाई है और बड़ा इकाई का वफाक का एक अहम तरीन सतून है, और बड़ा भाई होते हुए बाकी इकाइयों को साथ लेके चलना इस वक्त सबसे बड़ी पाकिस्तान की ज़रूरत है। और पंजाब के अंदर मैं वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की काविशों को आप तक पहुंचाने के लिए लाई गई हूँ, क्योंकि जो सर्विसेज, कंट्रीब्यूशंस और रिलीफ प्रोग्राम हुकूमत पंजाब पिछले 2 साल से इंस्टीट्यूशनल बेस्ड स्ट्रेटजीज, परफॉर्मेंस और फिर अल्टीमेटली उन पे अमल दरामद के हवाले से आपके साथ जितनी तफसील से, गहराई से और डीपली कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी, उसमें थोड़ा सा जो फुकदान है, कमी है, उसको आपकी ताकत से, आपकी सपोर्ट से इंशाल्लाह हम इफ़ेक्टिवली गैप को फिल करेंगे। और आज चूँकि पहला दिन है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अपोजिशन के मोर्चों पे बम्बारमेंट हो, लेकिन क्या किया जाए कि किसान इत्तेहाद के हवाले से अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और बड़ी शिद्दत से किसान के हमदर्द बन के एक सियासी टोला जो हर वक्त मीडिया की स्क्रीन को ऑक्युपाई करना चाहता है और कोई ना कोई मौका तलाश करता है कि उसे अपनी पजीराई का ज़रिया बनाए, तो वो ये भूल जाते हैं कि यही वो माल रोड है, यही वो पंजाब है जिसके अंदर किसान दूध सड़कों पे उंडेलते रहे हैं, आलू की बोरियां यहाँ ला के आग लगाते रहे हैं। ये वही किसान है, कोई उनकी डेफिनेशन चेंज नहीं हुई है। ये वही किसान है जिनकी रिलीफ और रिफॉर्म के लिए पंजाब पुलिस उस वक्त की उनको जिस तरह से धकेलती रही है सड़कों पे, ना मीडिया की आंख उसको भूली है और ना वो नबीनों पे होने वाला तशद्दुद और ना लेडी हेल्थ वर्कर्स पे चलने वाले लाठियां और बंदूकें और शेलिंग, मीडिया उसका गवाह है। वो तारीख के राख में भी सारे स्याह करतूत इस टोले के जिंदा है। लेकिन देखना ये है कि जिस किसान की हमदर्दी के लिए आज फोटोशूट हो रहा था, उस किसान के लिए इन्होंने अपने 5 साला दौर में क्या किया। हुकूमत पंजाब ने हमें इस चीज़ का एहसास है कि सबसे बड़ा सूबा, हम सारे पाकिस्तान के आलमोस्ट 70 to 75% जो ब्रेड एंड बटर है वो पंजाब से पैदा होता है और पूरे पाकिस्तान में वो एक बड़ा भाई होने की हैसियत से उनके ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने का ज़ामन है पंजाब। और पंजाब ने हमेशा उस बड़े भाई का किरदार अदा किया है, लेकिन बाकी सूबों ने और स्पेशली नून लीग ने अपने दौर में
गन्ने के काश्तकार को क्या रिलीफ दिया, गंदम की स्पोर्ट प्राइस को 5 साल क्यों ना बढ़ाया, खाद के हवाले से किसी तरह की भी कोई सब्सिडी क्यों ना दी गई, और जो बिजली के टैरिफ के हवाले से आज बात हो रही है और वो फ्लैट रेट्स की डिमांड हो रही है, ये सारी चीज़ें, ये कौम आगाह है कि उस वक्त किसान को किस तरह बेहाल किया गया, बदहाल किया गया, और सिर्फ चंद मफाद परस्त अनासर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ज़रूरी पॉलिसी बनती रही। आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत पंजाब ने किसानों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी निभानी है, और ये ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने उठाई है। जो गंदम की स्पोर्ट प्राइस है उसमें जो इजाफा हुआ है, खुद जो काश्तकार हैं हम में से वो समझते हैं कि हर इस चीज़ का एहसास है हमें, मैं खुद भी एक काश्तकार, मुझे पता है कि ये कीमत अभी और बढ़नी चाहिए, लेकिन आपको जो स्पेस अवेलेबल है इस वक्त, उन महदूद वसाइल में रहते हुए ये एक जेस्चर है। जो जो हमारे मुआशी हालात बेहतर होंगे, इंशाल्लाह ये कीमतें भी बेहतर होंगी। और इसके साथ साथ चूँकि मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन में मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, इस मिनिस्ट्री को रीस्ट्रक्चराइज करना, इसकी रिवाइवल करनी, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना, और इस मिनिस्ट्री को रीवैम्प करके दौरे हाज़र के जदीद तकाज़ों के मुताबिक इसको 9 रीजन, जो आपके DGPR के 9 रीजन्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी DGPR का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, 36 अजला हैं जहाँ हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर मौजूद हैं, और पंजाब के अंदर जो स्ट्रक्चर है, हमारी जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं उन मिनिस्ट्रीज़ का जो कनेक्टिविटी बॉन्ड है और नेटवर्किंग है, उसको हम डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। आपकी प्रेस क्लब्स जो सूबे भर में मौजूद हैं, उनको इंशाल्लाह एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज़्म के तहत हम इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स और प्रेस क्लब्स के अंदर बैठे जो हमारे जर्नलिस्ट्स हैं, उनको भी डिजिटल कम्युनिकेशन एकेडमी के ज़रिए एम्पावर करने जा रहे हैं। और वो डिजिटल कम्युनिकेशन एकेडमी पंजाब के अंदर एक ऐसा इदारा इस इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंडर काम करेगा जो जर्नलिस्ट की कैपेसिटी बिल्डिंग, ओरिएंटेशन और दौरे हाज़र के जो जदीद तकाज़े हैं जिसमें डिजिटलाइजेशन है, उससे उनको रूशनास कराया जाएगा। और इसमें जो हमारे प्राइवेट मालकान हैं अखबारात और चैनल्स के, उनको हम अपने साथ पार्टनरशिप में लाएंगे। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम पॉइंट है कि जो हमारे पंजाब के अंदर काम करने वाले मीडिया वर्कर्स हैं, वज़ीर आला पंजाब के साथ जो तफसील के साथ मीटिंग हुई है, उसमें वज़ीर आला ये ख्वाहिश रखते हैं और उनका ये अज़्म है कि मीडिया वर्कर्स को हर तरह से सहूलतकारी फ़राहम की जाए। उनको जो बेरोज़गार हुए हैं उनकी रोज़गार के लिए अल्टरनेटिव मौके प्लान किए जाएं। जो हमारे हेल्थ कार्ड्स हैं उनके अंदर जर्नलिस्ट जो हैं वो भी उसी तरह इक्वली हिस्सेदार बने, उनको भी उसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। और आपके जो बेघर सहाफ़ी हैं उनकी सहाफ़ी कॉलोनीज़
पंजाब भर में जहाँ जहाँ मुमकिन हो सकेगा हम आपके रिलीफ के लिए कोशिश करेंगे। जो जर्नलिस्ट एसोसिएशंस हैं, जो आपकी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, जो आपके इलेक्टेड प्रेस क्लब्स हैं, उनको इंशाल्लाह रेगुलरली चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ हम उनकी ओरिएंटेशन कराने जा रहे हैं। और जो एक पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है, जो बहुत सारे सरकारी अफसरान के सीने में दफन है, वो आप तक नहीं आ रही है, अवाम तक नहीं पहुंच रही है, उनको पब्लिक करने जा रहे हैं। और गवर्नमेंट की गुड गवर्नेंस और बेटर सर्विस डिलीवरी प्लान जो है, उसको अवाम के मफाद के लिए हुकूमत पंजाब की जो तरजीहात है और वज़ीर आला पंजाब का जो मंशूर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आपसे किया हुआ वादा है, उसको हर इंस्टीट्यूशन में इंशाल्लाह आपकी मदद के साथ आपकी ओरिएंटेशन हर मिनिस्ट्री में मैं खुद करवाने जा रही हूँ। और मिनिस्टर्स का आपके साथ जो जलवा अफरोज होना है वो अशद ज़रूरी है, क्योंकि उन मिनिस्टर्स की जिनकी अभी तक नकाब कुशाई नहीं हुई है और वो आपके सामने नहीं आ सके, उन मिनिस्टर्स को भी हम आपके सामने रूनुमाई कराने जा रहे हैं, ताकि पंजाब के अंदर बैठा हर वो महकमा और ऑफिसर और मिनिस्टर जो अवाम को जवाब दे है, जो मीडिया को जवाब दे है और हुकूमत को जवाब दे है, वो छुपा लुकी वाला सिलसिला अब ख़त्म होगा। और हमें सबको अपनी अपनी जगह आपके सामने बैठ के अपनी कारकर्दगी दिखानी है, बताना है कि 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पंजाब के अंदर जो इनिशिएटिव लिए हैं, उससे तब्दीली सरकार ने इस सूबे के इंस्टीट्यूशंस को बदलने में क्या रोल प्ले किया है, और उसमें आप सब का तावन अशद ज़रूरी है। इंशाल्लाह मीडिया से अब पंजा आज़माई नहीं होगी, मीडिया के साथ अब हमारी एक ओनरशिप और पार्टनरशिप होगी, और मीडिया को साथ लेके चलना इस हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। और आपने भी हमारी रहनुमाई करनी है, आप तनकीद करें, तामीर के लिए हमारी बेहतरी के लिए तजावीज़ भी दें। और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपकी तजावीज़ को सर आंखों पे रखते हुए बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे, और सूबे के अंदर मीडिया की सपोर्ट से हम ताज़ा हवा का झोंका बनने की कोशिश करेंगे। और जहाँ जहाँ गर्म हवाएं महसूस हो रही हैं, वहाँ पे भी कोई बर्फ़ के स्लैब लगाने की कोशिश करेंगे कि ना घबराएं, हमें मिल के काम करना है। और आप लोगों की राय के मुताबिक सूबे के अंदर तरक्की का जो अमल है वो अवाम की सोच का आईनादार बनेगा, और जो खुशहाली है पंजाब के अंदर, किसान हो, मजदूर हो, मेहनत कश हो। मुशीर इत्तलात पंजाब फ़िरदौस आशिक़ अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा